Hello guys, what's up, Kyal Chal? This is CN Nikunj Goenka, your tax mentor. As you all know that we have started our mock test series and we are conducting our mock test series by for all the intermediate students. We have started with direct tax जो कि already start हो चुका है. First mock test has been conducted on 23rd of September on three chapters, that is income from house property, income from salaries, residential status and scope of total income. And this जो मॉक टेस्ट हो रहा है ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. Details is there in the description box. You can join the WhatsApp group. In WhatsApp group, we are dedicatedly helping the students to solve their issues, and whatever mock test paper process is conducted, that is done through WhatsApp group. अगर आप interested हो तो आप ज़रूर ज्वाइन करेगा. डिस्क्रिप्शन लिंक जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. और आज के वीडियो में मैं सजेस्टेड आंसर डिस्कस करूंगा. जैसे जैसे पेपर होता जाएगा वैसे वैसे आपके साथ सजेस्टेड आंसर का वीडियो भी शेयर किया जाएगा, सो दैट you can come to know ki what is the process and what was the process of deriving the answers. And it is very important that you should alongside the revision you should also practice and you should also give mock test. As much as mock test you will give, the better confidence you will get before the examinations. So we are conducting for inter IDT. Detailed schedule has already been shared in my YouTube channel community post, and it will also be shared in the WhatsApp group. So agar aap you want to be part of this test series, free test series, you can definitely join our WhatsApp group and you'll be also given the suggested answer जो कि हम लोग अपने ग्रुप में ऑलरेडी दे रहे हैं. अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन जरूर करिएगा, सो दैट आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा. इंटर डीटी, इंटर आईडीटी, फाइनल आईडीटी, सारे सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ाता हूँ सबकी मॉक टेस्ट होगी सर, ठीक है ना. So let's begin with our suggested answer of mock test 1, that is income from हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड रेसिडेंशियल स्टेटस. तो ये अभी आपको सजेस्टेड आंसर का मैं आपके लिए सोल्यूशन वीडियो डिस्कस कर रहा हूं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. ये जो टेस्ट था ये 1.5 आवर्स का था और 50 मार्क्स का पेपर था. दो क्वेश्चन एमसीक्यू का मैंने दिया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नंबर 1 में आते हैं. इंडिविजुअल एज 28 ईयर्स, बोर्न इन इंडिया, यानी कि ये इंडियन सिटीजन है. लेफ्ट फॉर फर्स्ट टाइम फॉर एम्प्लॉयमेंट इन फ्रांस. वो इंडियन सिटीजन है, इंडिया लीव कर गया एम्प्लॉयमेंट के लिए इन फ्रांस ऑन 30th अक्टूबर 2023. ये वाला जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 23-24 एवाई 24-25 के हिसाब से कर रहे हैं. ऑब्वियसली अगर आप 2025 टर्म में एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए एक साल आगे बढ़ जाएगा और कोई चेंजेस नहीं रहेगा क्वेश्चन में. तो 30th अक्टूबर 2023 में आपने इंडिया विजिट की, आपने इंडिया सबसे पहले लीव किया. हिज विजिट आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम आप इंडिया के बाहर गए हो. हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर क्या होगा? एक्चुअली द आंसर इज आरओआर. अब ये कैसा है ये बार डिस्कस करते हैं. 30th अक्टूबर 2023 को गाइस ही हैज लेफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि 1 अप्रैल 23 से 30th अक्टूबर ही वाज इन इंडिया, राइट? बिकॉज ही लेफ्ट ऑन 30th अक्टूबर. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, August, September, and October. This means he stayed in India for 213 days. Means he is fulfilling condition number 1, that is 180 days or 182 days or more. So he is definitely considered to be a resident. Now, if he is a resident, you need to further check whether he is ordinary resident or a not ordinary resident. Clear hai? Since he visited India, since he visited outside India for the first time, this means that he was always in India till until 30th अक्टूबर. तो 30th अक्टूबर के पहले वो हमेशा इंडिया में था. सो ही विल डेफिनेटली फुलफिल बोथ द एडिशनल कंडीशंस, दैट इज ही स्टेड इन लास्ट 7 years 730 days or more, and he was at least resident in 2 years out of the last 10 years. So definitely my answer will be resident and ordinarily resident. ठीक है सर, यू वर नॉट एक्सपेक्टेड टू गिव एनी रीजंस, बट येस, I would suggest that if you're writing, if you're giving MCQs, better to just write this days, क्योंकि आप calculate तो करेंगे. Better you just write the number of days that you have stayed in India, 213 days, and fulfill both the basic and additional conditions. So hence is a ROR. Next, income of rupees 3 lakh is received in Sri Lanka by an ordinarily resident, but later on 50,000 was remitted to India. Remitted does not means received, we have already understood. Now this Sri Lanka में जो income receive हुआ, it was by an ordinarily resident. Global income is taxable for resident, ordinary resident. तो 3 lakh entire income will be taxable. 50,000 which is remitted does not amount to receive. ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा. So sir, 3 lakh will be fully taxable for ROR. Okay, so if you have given the correct answer, so yes, 2 marks यहाँ पे, 2 marks यहाँ पे, you will get 4 marks. ठीक है, आपको 4 marks जो है यहाँ पर मिल जाएगा सर. नेक्स्ट समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था.
पहला सवाल एकदम इजी क्वेश्चन आया था, बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने पूछा था। मिस्टर एक्स, अ रेसिडेंट, एज 56 years, till recently was a successful businessman filing his returns regularly and promptly ever since he obtained his PAN. Due to COVID pandemic, his business suffered severely and he incurred huge losses. He was not able to continue his business and finally on 1st January 24, he decided to wind up his business, which he promptly intimated to the jurisdictional AO about the closure of his business. The AO sent him a notice to tax income, ध्यान देना, to tax income of AY 24-25 during AY 23-24 itself. The AO sent him a notice to tax income of AY 24-25 नहीं होगा, ये 23-24 होगा, ड्यूरिंग द, नहीं नहीं ठीक है, दिस इज फाइन। AY 24-25 मतलब क्या, जो कि प्रीवियस ईयर 23-24 है। एओ ने उसको नोटिस भेजा कि 23-24 का जो मेरा उसका इनकम है वो AY 23-24 में ही टैक्स करना चाहता है, यानी कि वो पहले ही टैक्स करना चाहता है। डज द एओ हैव द पावर टू डू सो? आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर? सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था दैट देयर आर 5 इंस्टेंसेस वेयर द इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द सेम असेसमेंट ईयर. So yes, he has a power to do so. Since the business of Mr. X is discontinued, since the business of Mr. X is discontinued on 1st January, 1st January को business discontinue हो गया है, the income from this period, 1st of April 23 से 1st of January 2024, यानी ये जो साल का इनकम है वो उसी असेसमेंट ईयर में एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एओ में बी चार्ज टू द AY 23-24 itself. Following are the exceptions. What are the exceptions? You just needed to give this answer. Shipping business of the non-resident, shipping business of the non-resident, person leaving India with no intention of returning back. Very important. Just leaving India will not give the power to AO to tax the income. You have to leave India with no intention of returning back. AOP, BOI, AJP formed for a particular event or a purpose and they are likely to be dissolved. Person likely to transfer property to avoid tax and discontinuance of business. These are the 5 instances where the income of the previous year may be taxable in the same assessment year itself. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Ram provides the following details of the income. Calculate the income which is liable to be taxed in India for the assessment year 24-25, assuming that he is a ROR, he is a RNOR और he is a NR. ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में एकदम टेबल बना लेना है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम लायबल टू बी टैक्स्ड, 3-4 कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर्स, ROR, RNOR एंड NR, दैट्स इट। जो भी इनकम टैक्सेबल होगा वहां पे अमाउंट लिख देंगे, जो टैक्सेबल नहीं होगा वहां पे डैश कर देंगे, सिंपल। और नील भी लिख सकते हैं आप। तो सर ROR के हाथ में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है, RONR के हाथ में ओनली इंडियन सोर्स्ड इनकम टैक्सेबल, NR के हाथ में भी ओनली इंडियन सोर्स्ड इनकम टैक्सेबल, बट फॉर ROR वन स्पेशल इनकम दैट इज बिजनेस इनकम विल आल्सो बी टैक्सेबल विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके, इंडिया में सैलरी रिसीव हुआ है तो इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल, ये सबके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको पर्टिकुलर्स में खाली लिखना था सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर एंड देन यू जस्ट नीडेड टू गिव द अमाउंट। ठीक है सर, नेक्स्ट, income from tea business in Nepal being controlled from India, income from tea business in Nepal being controlled from India, tea business कहाँ पे हो रहा है, इंडिया के बाहर हो रहा है बट इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, तो फॉर RNOR इट विल बी टैक्सेबल। ROR के हाथ में तो टैक्सेबल होगा ही, RNOR के हाथ में भी टैक्सेबल होगा, बट नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा सर। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा, 1/3 ऑफ द इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन इंडिया, दैट इज 30,000। तो इंटरेस्ट इनकम जो है वो 1/3 इंडिया में रिसीव हुआ है, यानी 30,000 इंडिया में रिसीव है, तो 30,000 जो होगा वो तो आप क्या करेंगे, अब इसमें 30,000 आपने टोटल है, इसमें 1/3 इंडिया में रिसीव हुआ, मतलब जो 10,000 वाला अमाउंट है वो तो आप टैक्सेबल करेंगे ROR आई मीन RNOR और NR के हाथ में। बाकी ग्लोबल इनकम यानी जो 30,000 इनकम है वो आपके दोनों के हाथ में जो होगा टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब दोनों इन द सेंस ROR के हाथ में दोनों कंपोनेंट टैक्सेबल हो जाएगा, बट फॉर RNOR एंड NR ओनली इनकम विच इज एट्रिब्यूटेबल टू रिसीव्ड इन इंडिया, खाली उतना ही टैक्सेबल होगा सर। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल फ्रॉम यूके, कंट्रोल कहीं से भी हो रहा है उसकी इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल होगी, दैट इज 1 लाख, 1 लाख एंड 1 lakh. Next, profit for the past years 2013-14 from a business in Tokyo remitted to India. Remittance does not mean received in India. ये जो 2 लाख की इनकम है ये कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि पास्ट इनकम्स है, ये पास्ट इनकम्स कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं होगी बिकॉज दिस इज पर्टेनिंग टू द प्रीवियस ईयर 13-14 एंड दिस इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, दिस इज रेमिटेड टू इंडिया, सो दिस विल नॉट बी टैक्सेबल फॉर एनी ऑफ द पर्संस ROR, RNOR एंड NR.
इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया का प्रॉपर्टी है, अक्रू इन इंडिया होगा, ऑल्दो इट इज रिसीव्ड इन यूएसए, तो इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल 45 45 45. Next, income from property in London received in Delhi, although not Indian sourced property, but it is received in India, so it will be taxable for all 1 lakh 50, 1 lakh 50, 1 lakh 50. Next, income from property in London but received in Canada. Nothing is received in India, nor neither it is received in India nor it is accrued in India. So this will be taxable only for ROR. It will not be taxable for RNOR and NR. Income from a business in Zambia but controlled from Turkey. So again only it is taxable for ROR. It is not taxable for NR and RNOR. तो आप ग्लोबल टोटल कर देंगे तो ये आपकी टोटल आ रही है 7.35, 4.55, 4.45. अगर आपका इसमें कोई भी सिली मिस्टेक हुआ तो यू कैन एक्सपेक्ट सम मार्क्स टू बी रिड्यूस्ड, जैसे उसके हिसाब से आपका मार्क्स जो है कम हो जाएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको टैक्सेबिलिटी निकालनी थी, स्कोप ऑफ टोटल इनकम से क्वेश्चन पूछा गया था। Examine the tax implications of the following transactions. You need to give the brief reason. Mr. Akash, an Indian citizen, is a NR in India. Indian citizen है, NR है. He has been appointed by the government of India as an ambassador in Japan. He received salary of 7.5 lakh and allowances of 2.4 lakh for rendering his services in Japan. यहाँ पर क्या हो रहा है, बात को समझो। सैलरी रिसीव किया गया है 7,50,000 का और अलाउंसेस दिया गया है 2.4 लाख का। ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड इंडिया। तो एज पर सेक्शन 9(1) वी हैड अंडरस्टूड दैट एनी सैलरी इनकम रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल ऑलवेज बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, hence it will be taxable in the hands of the government employee. Now we have also read that as per 10 clause 7, allowances which is paid and perquisites which is paid to these employees will not be taxable, it will be exempt under 10(7). तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे अच्छे से समझाना था कि एज पर सेक्शन 9(1) you may not remember clause 3, not a problem, but you have to remember 9(1). salaries payable by government to citizen of India for rendering services outside India will be deemed to accrue or rise in India, ये चीज आपको लिखना था सर। Thus salary from government by Akash being a NR will be taxable in India after allowing the standard deduction. Obviously ये जो इनकम है इसमें आपको standard deduction भी दिया जाएगा सर। Next, what about this 2,40,000? Any allowance paid outside India by government to an Indian citizen will be exempt under 10(7). ये आपको exemption का सेक्शन नंबर याद होना चाहिए, नहीं होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स आपका डिडक्ट हो सकता है। Hence 2,40,000 being the allowance will be totally exempt under section 10 clause 7. Miss Anna, a non-resident, is engaged in operations which are confined to the purchase of goods for the purpose of export. एक NR इंडिया में she is purchasing in India and then she is exporting and from that she is earning the profit. तो क्या ये income इंडिया में taxable होगा? Sir, we have already understood in scope of total income there are certain incomes which are not deemed to accrue or arise in India if it is just confined to purchase and export. So in case of NR, no income will be deemed to accrue in India if they are confined through or from operations which are confined to purchase of goods in India for the purpose of export. Thus the income will not be taxable since our operations is confined to the purchase for the purpose of export. Next, Sumit, a non-resident, has earned 4 lakh as a royalty for a patent right made available to Mr. Vikash, who is also a non-resident. ध्यान से सुनो, सुमित एक non-resident है जिन्होंने 4 लाख की रॉयल्टी इनकम रिसीव की। सुमित एक नॉन रेसिडेंट है जिन्होंने 4 लाख की रॉयल्टी इनकम रिसीव की, ओके, फॉर अ पेटेंट राइट मेड अवेलेबल टू विकास, जो कि नॉन रेसिडेंट है। विकास यूटिलाइज्ड पेटेंट राइट्स फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इन इंडिया। विकास ने जो पेटेंट राइट्स यूज किया था वो इंडिया में किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज किया था, बट 50% इज रिसीव्ड इन इंडिया एंड 50% आउटसाइड इंडिया, डजंट मैटर। 50% इंडिया में रिसीव हुआ है, 50% इंडिया के बाहर रिसीव हुआ है, बट 100% इंडिया में अक्रू हुआ है सर। सो इफ दिस पेटेंट इनकम, this patent royalty income will be accrued in India, it will be deemed to accrued in India because ultimately the rights were utilized in India and it is deemed to accrue in India, and hence this income will be taxable in the hands of Mr. Sumit earning 4 lakh royalty. You have to explain this. Royalty payable would be deemed to accrue in India if only when the royalty is payable for rights used for the purpose of business or profession carried out in India. In the present case, Vikash NR paid the royalty for 4 lakh for patent right developed for a use for a development of a product in India, irrespective of the fact whether only 50% of royalties received in India. Hence, this income will be fully taxable in hands of Mr. Sumit. आपको proper reasoning देना था। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी सारे स्टूडेंट का इसमें हो सकता है रॉन्ग हो, क्योंकि यहाँ पर वो भूल गए होंगे कि इंटरेस्ट इनकम के लिए बिजनेस यूज होना जरूरी है। यानी कि इफ आई हैव टेकिंग अ लोन, इफ अ नॉन रेसिडेंट इज टेकिंग अ लोन
from another non-resident. If the end utilization is not business in India, then that interest income will not be taxable in India. जबकि यहाँ पर ये हुआ था, Jimmy NRI borrowed 10 lakh from Naveen, who is also a non-resident, and invested such money in shares. Oh my God! यहाँ पर जो interest income arise होगा, this will not be deemed to accrue in India because this was not used for the purpose of business carried out in इंडिया. तो यहां पर जो नवीन को इंटरेस्ट मिलेगा ये टैक्सेबल नहीं होगा सर, बिकॉज एज पर सेक्शन 9 इट इज नॉट डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया. क्या लिखा है? इंटरेस्ट विच इज पेड बाय द नॉन रेजिडेंट ओनली फॉर द मनी बोरोड फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस प्रोफेशन वुड बी नॉट डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ओनली बिजनेस पर्पस विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. इन द प्रेजेंट केस Jimmy, a non-resident, borrowed the money for investment which is not the business, which has no connection with business, and hence it will not be deemed to accrue or arise in India, and hence it will not be taxable in India. ठीक है, तो गाइस प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. देखिए मॉक टेस्ट देने का ये फायदा होता है कि आपको पता चलता है कि वेदर यू आर एबल टू प्रेजेंट द आंसर्स और नॉट. तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, आंसर्स को ठीक तरीके से प्रेजेंट करिए, एंड दैट इज द ओनली वे आउट फॉर क्लियरिंग एग्जामिनेशंस. मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है. तो जितना मॉक टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा सर. क्वेश्चन 4 में आते हैं अपने. क्वेश्चन 4 इज अ ब्यूटीफुल क्लासिक एग्जांपल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और बाद में आपको लास्ट में ये भी रिवील कर दूंगा कि क्वेश्चंस कहां से लिया गया है, तो आपको पता चल जाएगा सर. Sarju Mide is the owner of 2 houses in Kolkata. Sarju Mide is the owner of 2 houses कोलकाता में है. From the following particulars you needed to compute the income from house property. House A and House B, and you have been given other information. यहाँ पे house property का क्वेश्चन आ गया. House A क्या था? Let out to an employee of the business of Sarju. ठीक है, I have let out the property to my employees at rupees 5,000 per month, which is necessary for the purpose of the business. वो business के लिए जरूरी है. Municipal tax paid 3,000. Interest loan taken for purchasing the house amounted to 9,000. So we have already understood that if your property is used for business purpose, then definitely this income will not be taxable under the head income from house property. तो ये मेरे HP income में taxable नहीं होगा. इसका working note अपन को देना था that house A will not, income from house A will be taxable under the head PGBP, but you have been asked to calculate income from house property. तो house A से अपने को कुछ लेना देना नहीं है. Come to house B. House B consists of 3 flats. First, identical मतलब equal, 1/3, 1/3, 1/3. First flat is used by for his own business. Again यहाँ पे अपने मतलब नहीं है. Second flat is used by own residence. This is self-occupied. And third flat is let out at a monthly rent of 15,000. That is LOP, and municipal tax paid at rate of 5% amounted to 20,250. तो म्यूनिसिपल टैक्स जो पेमेंट किया गया है वो 20,250 पे किया गया है एट द रेट ऑफ 5%. तो यहां से अब बैक कैलकुलेशन करके म्यूनिसिपल वैल्यू निकाल सकते हो. तो 20,250 का डिवाइड बाय आप 5% करेंगे, 20,250 डिवाइडेड बाय 5%, विच इज कमिंग टू 4,05,000. तो 4,05,000 आपका म्यूनिसिपल वैल्यू आ गया. इस पे 5% आप अगर कैलकुलेट करते हो तो आपको म्यूनिसिपल टैक्स मिल जाता है और आप 20,250 का इजीली कैलकुलेशन निकाल सकते हो. नाउ इन दिस सिचुएशन दे हैव आल्सो गिवन यू अनलेटेड रेंट. तो गाइस एक प्रॉपर क्लासिक क्वेश्चन है ऑफ एरिया वाइज. ये एरिया वाइज हो गया कि 1 फ्लैट है, उसकी वैल्यूएशन है आपको 1/3, 1/3 और 1/3. इस तरीके से आपको उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. सब चीज 1/3 होगा. अनरियलाइज्ड रेंट रिलेटिंग टू द थर्ड फ्लैट, ये थर्ड फ्लैट का ही बात किया जो आपने लेट आउट किया है, जो कि है 10,000. तो ये आपके एक्चुअल रेंट से माइनस हो जाएगा. A loan of 20 lakh was taken on 1st July for construction of the house. तो 1st जुलाई 20 को आपने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बी. तो हाउस बी में आपका पूरा का पूरा लोन लिया है. कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 1st जून 22. तो आपकी प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट हो गई? 22-23 से आपकी प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो गई. तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन क्या होगा? 2021 प्री कंस्ट्रक्शन होगा और 21-22 प्री कंस्ट्रक्शन होगा. यानी 2 साल आपका प्री कंस्ट्रक्शन है. और आपके लिए करंट ईयर अभी है 23-24. जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे आपके लिए करंट ईयर 24-25 हो जाएगा. तो सर कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 1st जून. इंटरेस्ट है आपका 12% पर एनम एंड नो रीपेमेंट वाज मेड. तो यहां पर क्या होगा सर? सिंपल सा बात है, हमें फ्लैट 1 का भी फर्स्ट फ्लैट का भी कुछ निकालना नहीं है. हम खाली सेकंड फ्लैट और थर्ड फ्लैट का निकालेंगे. ठीक है, हम सेकंड फ्लैट और थर्ड फ्लैट का निकालेंगे. पहले अपने आते हैं एक बार थर्ड फ्लैट में, क्योंकि थर्ड फ्लैट में कैलकुलेशन है. सेकंड फ्लैट में खाली एनुअली 0 होगा और तुम्हें इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा. तो सर यहाँ पर हाउस ए में कुछ नहीं करना था, हाउस बी में खाली सेकंड फ्लैट और थर्ड फ्लैट का आपको करना था. तो फ्लैट 3 आपने लेट आउट किया है. मंथली रेंट कितना है? 15,000. तो सबसे पहले आपको ना इसका वर्किंग नोट निकालना था कि फ्लैट पूरे हाउस बी का आपका जीएवी क्या होगा सर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील कैलकुलेट ओनली फॉर हाउस 3.
आई मीन सॉरी हाउस बी का यूनिट 3 मतलब थर्ड फ्लैट। तो थर्ड फ्लैट में आप पहले ये बताओ, आपका 4,05,000 आ रहा है म्यूनिसिपल वैल्यू, तो 4,05,000 में हम इंटू वन थर्ड करेंगे तो वी विल बी गेटिंग एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज वन थर्ड, दैट इज म्यूनिसिपल वैल्यू आपका 1,35,000 है। एक्चुअल रेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक्चुअल रेंट दिया 15,000 और अनरियलाइज रेंट दिया 10,000। तो एक्चुअल रेंट विल बी व्हाट? 15,000 इंटू 12। अब देखो इंस्टीट्यूट क्या करता है, देखो देखो इंस्टीट्यूट एक्चुअल, अगर फेयर रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है ना, तो एक्चुअल रेंट को फेयर रेंट भी मान लो, एक्चुअल रेंट को क्या मान लो? फेयर रेंट भी मान लो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम जब कंपेयर करेगा तो तुमको उससे पता चल जाएगा। तो ये इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है बेटा, इसी के हिसाब से अपन को चलना है। एक्चुअल रेंट को भी फेयर रेंट मान लो, तो फेयर रेंट क्या होगा? जो कि तुम्हारा मार्केट में रेट चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और थर्ड फ्लैट मंथली रेंट में 15,000 पर मंथ हुआ, तो यहां पर इंस्टीट्यूट ने क्या माना? 15,000 इंटू 12, 1,80,000। स्टैंडर्ड रेंट कुछ नहीं है, तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर, 1,80,000। अब एक्चुअल रेंट क्या है तुम्हारा? ध्यान देना, एक्चुअल रेंट में तुम अनरियलाइज रेंट में माइनस करोगे, 1,80,000 माइनस 10 तो ये हो गया 170, तो आपका जीएवी हो गया 180। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट 170 ही अपना जीवी करके आए होंगे, क्योंकि उन्होंने फेयर रेंट नहीं लिया सर। तो आपने देखा इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है, अपने को इसी के हिसाब से चलना है, आपके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन का बैंक से दिया गया है। तो सर इसी के हिसाब से चलना, फेयर रेंट को मान लेना एक्चुअल रेंट, और उसी के हिसाब से यहाँ पे अजम्पशन ले लेना कि इट हैज बीन कंसिडर्ड एज पर द मार्केट रेट्स एज पर द एक्चुअल रेंट बेसिस। तो 180 इज माई जीएवी, बिकॉज आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट ले लिया गया, आई मीन एक्सपेक्टेड रेंट फेयर रेंट ले लिया गया। तो 180 इज द जीएवी ऑफ द प्रॉपर्टी 3। तो आपने जीएवी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 1,80,000। उसमें से आप क्या करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड। अब दिस 2250 इज फॉर 3, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, आपको वन थर्ड करना पड़ेगा इसमें, दैट इज 6750। एनएवी क्या आ गया? 173,250। इसके ऊपर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेंगे 51,975। अब आपको इंटरेस्ट का अलग से वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। 20 लाख का करंट ईयर इंटरेस्ट क्या होगा? 12% के हिसाब से 2.4 लाख। लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं है। लास्ट टू ईयर्स में, मतलब यहां पर 2021 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 मंथ्स आपने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट, एंड 21-22 में फुल 12 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया हुआ है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 9 मंथ्स 12 मंथ्स। तो 9 मंथ्स कैसे करेंगे अपने? 20 लाख का 12% इंटू 9/12 विच इज कमिंग टू 1,80,000। 20 lakhs का इंटू 12% विच इज कमिंग टू 240। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 4,20,000। तो 4,20,000 को आप डिवाइड बाय 5 करेंगे विच इज कमिंग टू 84,000। 84,000 में आपने करंट ईयर इंटरेस्ट ऐड किया 2,40,000, तो टोटल जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 3,24,000। तो 324 हमारा टोटल इंटरेस्ट है। इसको तुम वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड करोगे तो तुम्हें 1,08,000 का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट का खाली फ्लैट 3 का मिल जाएगा, जो कि हाउस बी का है। तो 1,08,000 को आप माइनस करोगे, आपको यहां पर इनकम आ जाएगा 13,275 फ्रॉम यूनिट 3, दैट इज लेट आउट। अब आप बताओ, यही 1,08,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा इवन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसकी एनुअल वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 1,08,000 नेगेटिव हो जाएगा। तो 1,08,000 नेगेटिव एंड 13,275 पॉजिटिव, तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज -94,725। ये आपका फाइनल आंसर है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है? 94,725 का लॉस है। क्यों? क्योंकि हाउस बी में आपका फर्स्ट पार्ट इज ओन बिजनेस, सो दिस विल बी बिजनेस इनकम एंड हाउस इज आल्सो बिजनेस इनकम। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था हाउस प्रॉपर्टी में, जहां पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, उसमें से बहुत सारे इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन थे, उसमें से आपको निकालना था कि भाई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या है। नेक्स्ट सैलरी में से क्वेश्चन पूछा गया था मेडिकल परक्यूसिट, बहुत इजी सवाल था। हिमालय लिमिटेड रीइंबर्सेस द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सन ऑफ द एम्प्लॉय। इसमें 3 तरह का कॉम्बिनेशन होता है बेटा, एक होता है आपका ट्रैवलिंग परक्यूसिट, एक होता है मेडिकल, और एक होता है आपका स्टे। ठीक है, तो ध्यान देना, स्टे एक्सपेंसेस हो गया और मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, दीज आर ऑलवेज एग्जेम्प्टेड अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। बट ट्रैवलिंग परक्यूसिट इज only exempt if your gross total income does not exceed 2 लाख। यानी अगर आपका जीटीआई 2 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपका जो ट्रैवलिंग परक्यूजिट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। ट्रैवलिंग परक्यूजिट में कोई भी आपका टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। बट जो आप ग्रॉस टोटल इनकम लोगे, जो ग्रॉस टोटल इनकम का मैंने आपको 2 लाख का लिमिट दिया है, दिस इज आफ्टर कंसिडरिंग, ध्यान दो, दिस इज द कैच,
दिस इज कंसिडरिंग आफ्टर कंसिडरिंग द मेडिकल परकोजिट। यानी आप ध्यान से सुनो, आपका स्टे परकोजिट और मेडिकल परकोजिट इज एग्जेम्प्टेड अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। यानी कुछ पार्टली टैक्सेबल हो सकता है ना, तो जो भी टैक्सेबल होगा ना वो 2 लाख के कैलकुलेशन में जुड़ेगा, वो 2 लाख की कैलकुलेशन में जुड़ेगा। जैसे देखो यहां पर आपका स्टे एक्सपेंसेस एक्चुअली लगा है 70, बट आरबीआई ने अलाउ करके रखा है 45, तो यहां पर आपका 55, 65, 25,000 इज योर टैक्सेबल वैल्यू। मेडिकल परकोजिट 70 लगा है, बट आरबीआई ने अलाउ करके रखा है 50। तो यहाँ पे इन एनी सिचुएशन आप चाहे कुछ भी करिए, आपका 25,000 स्टे परकोजिट एंड मेडिकल परकोजिट 20,000 टैक्सेबल होगा ही होगा सर। नाउ दे हैव बीन आस्क्ड यू टू कंप्यूट द टैक्सेबल परकोजिट इफ एनुअल इनकम फ्रॉम सैलरी बिफोर कंसिडरिंग द मेडिकल परकोजिट इज दिस मच। तो अब आप मेडिकल परकोजिट का फैसिलिटी का टैक्सेबल वैल्यूज में ऐड करेंगे, और ये अगर 2 लाख से कम हुआ तो ही आप इस ट्रैवलिंग परक्विजिट का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, वरना क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो टू सिचुएशंस हम बनाए। अगर आपका सैलरी, ठीक है, सबसे पहले आप टैक्सेबल वैल्यू निकालो कि दोनों का टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा सर, किसका, स्टे एंड मेडिकल का। तो स्टे एंड मेडिकल एंड ट्रैवल, तो पहले अपने मेडिकल कर लिए, मेडिकल में अपने 2020, 25, 25 दोनों सिचुएशन के हिसाब से आप कर रहे हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। आप चाहे तो एक में भी कर सकते हो और फिर दोनों में रेप्लिकेट कर सकते हो एज यू विश, ठीक है। तो 2020 हो गया आपका मेडिकल परक्विजिट, स्टेइंग परक्विजिट कितना हो गया 25 एंड 25, तो स्टेइंग परक्विजिट हो गया 25, 25, ठीक है। अब ध्यान देना, ट्रैवलिंग का क्या करना है सर, ट्रैवलिंग में क्या करना है, ट्रैवलिंग में आपका सैलरी पे डिपेंड करता है, सैलरी कितना हुआ 1,50,000 एंड 2 लाख, तो 1,50,000 एंड 2 लाख में मेरे को ये ऐड करना पड़ेगा 2025 एंड 2025, ये मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो जीटीआई देखो कितना आ रहा है, फर्स्ट केस में जीटीआई आएगा 1.95 लाख विच इज लेस देन 2 लाख, एंड सेकंड केस में आएगा 2.45 लाख। तो जब 2.45 लाख आ गया, 2 लाख से ज्यादा हो गया, आपको ट्रैवलिंग परक्विजिट भी ऐड करना पड़ेगा, पूरा टैक्सेबल करना पड़ेगा 1,15,000 विच विल मेक योर टैक्सेबल परक्विजिट 1,60,000। बट इन द अदर केस वन, योर टोटल ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2 लाख, तो आपकी ट्रैवलिंग परक्विजिट हो जाएगी 0 और आपकी टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगी 45,000, टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगी 45,000। क्लियर हुआ सर? तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक पार्ट भी इसका, पार्ट भी मेन क्वेश्चन में दे कैन आस्क यू, इंस्टीट्यूट कैन आस्क यू। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता था अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक चॉइस बताना था कि तुम्हारे लिए टेक्स्ट वाइज कौन सा बेटर है, वेदर यू विल गो फॉर एचआरए और यू विल गो फॉर आरएफए। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है सर। अगर आप आरएफए लेते हो तो आपके हाथ में सैलरी कितना फाइनली बचेगा, और अगर आप आरएफए नहीं लेते हो, एचआरए लेते हो, तो आपके पास सैलरी कितना बचेगा। तो सिंपल था। बेसिक सैलरी दिया हुआ है कोलकाता में, भरत ऑफ सिलीगुड़ी, विमल एंड कंपनी, 5500 पर मंथ। अदर सोर्सेज डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, 4,000 पर मंथ, मेडिकल अलाउंस 1,000 पर मंथ, बोनस मीन वंस मंथ, बेसिक सैलरी मतलब 5500 per month. Company gives an option to him either to take RF in Kolkata of the fair rental value of 1,000 per month, मतलब जिस घर का फेयर रेंटल वैल्यू है 1,000 पर मंथ, और टू एक्सेप्ट अ कैश एचआरए, या तो 1,000 पर मंथ का एचआरए ले ले, या तो सर उस घर का वैल्यूएशन दे दिया तुम्हें 1,000 पर मंथ, उससे हमें मतलब नहीं है। ही डिसाइड्स टू एक्सेप्ट एचआरए एंड टेक्स हाउस इन कोलकाता एट अ मंथली रेंट ऑफ 1,000 रुपीज। वो एक्सेप्ट कर लेता है एचआरए एंड टेक्स अ हाउस इन कोलकाता एट अ मंथली रेंट ऑफ 1,000, मतलब मंथली रेंट उसका कितना लग रहा है 1,000 रुपीज, और वो एचआरए लेने का डिसीजन लेता है। डू यू थिंक ही हैज मेड अ वाइज चॉइस फ्रॉम टैक्स एडवांटेज स्टेट रीजंस? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फाइनल टैक्सेबल सैलरी निकालना है दोनों सिचुएशंस में। तो सर यहाँ पे खाली एक सिचुएशन में तो आप आरएचए में से एग्जेम्पशन माइनस क्लेम करके आप फाइनल अमाउंट लिखोगे सैलरी में, और एक में आपको आरएफए का वैल्यूएशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फाइनली जो आंसर आएगा मेरा, दैट विल बी माई, जो भी जिस भी सिचुएशन में मेरी टैक्सेबल सैलरी ज़्यादा आ रही है वहाँ पे मैं ऑब्वियसली नहीं जाना चाहूँगा, मैं लोअर टैक्सेबल सैलरी में जाना चाहूँगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, चलो लेट्स सी वंस। पहले अपने बेसिक सैलरी 5500 पर मंथ था अपना, तो 5500 के हिसाब से अपने 66,000 तक अराइव कर लिए। तो 5500 इंटू 12, आइदर यू गो इन एचआरए या फिर आप आरएफए में जाते हो, तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी 66,000 होगी, आपकी बेसिक सैलरी 66,000 होगी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट अपना आता है डीए, डीएस 4,000 दैट इज 48 एंड 48। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है मेडिकल, मेडिकल इज मेडिकल अलाउंस इज 1,000 पर मंथ, तो 12,000 एंड 12,000। नेक्स्ट आता है आपका बोनस, बोनस इज 1 मंथ, तो 5500 ही देना है, दोनों में ऐड कर देना है। ठीक है, अब आप आओ एचआरए में।
HRA कितना मिल रहा है आपको? HRA यू आर बीइंग गेटिंग 1000 पर मंथ, तो HRA में क्या हो जाएगा? 1000 रुपीज यू आर गेटिंग। तो लीस्ट ऑफ द एग्जेम्प्ट, आई मीन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा 1013A में। 1013A में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट रिसीव 12,000। अच्छा, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। रेंट आपने कितना पे किया है सर? रेंट हमने पे किया है 1000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 12,000, 10% ऑफ सैलरी। अब इसमें सैलरी क्या आएगा? बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन। तो यहाँ पे सर डीए फॉर्मिंग पार्ट नहीं है, डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट है, तो यहाँ पे आपको खाली 66,000 का ही 10% मिलेगा, विच इज 6600। तो 12,000 माइनस 6600, 12,000 माइनस 6600 विल गिव यू 5400। और आपका मैक्सिमम कोलकाता में तो 50% अलाउड है सैलरी का, तो 50% ऑफ 66 इज 33, तो लीस्ट क्या हो गया? 5400। तो आपके हाथ में नेट टैक्सेबल सैलरी क्या हो जाएगा? एचआरए में जो जाएगा वो होगा 6600। आरएफए यहाँ पे अपने कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको आरएफए मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे नेट टैक्सेबल सैलरी व्हेन यू आर टेकिंग एचआरए इज 1,38,100। जब आप एचआरए ले रहे हो तो आप 138,100 आपका टैक्सेबल सैलरी हो रहा है, ठीक है। अब अपने आते बेटा आरएफए सिचुएशंस में। तो आरएफए सिचुएशन में पहला 4 एलिमेंट तो सेम होगा, बट जब आप आरएफए लोगे तो वहां पे आपको आरएफए के लिए वैल्यूएशन करना पड़ेगा। और आरएफए के लिए वैल्यूएशन क्या होगा? आपको पता है चेंज हो चुका है 5, 7.5 एंड 10। तो कोलकाता में घर है तो सैलरी का 10% आप लेंगे। तो सैलरी क्या है यहाँ पे? बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन। अब थोड़ा ध्यान देना, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट, ठीक है। अकोमोडेशन के लिए हम क्या करते हैं? बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस एनी मॉनेटरी पेमेंट। तो सर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे बस आपका डीए नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे खाली डीए नहीं आएगा क्योंकि डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट है। यहाँ पे बेसिक आएगा, बोनस आएगा और मेडिकल अलाउंस आएगा। तो ये तीन का आप टोटल करेंगे, 66,000 प्लस 5,500 प्लस 12,000, दिस गिव्स यू 83,500। तो 83,500 का अपने को 10% निकालना पड़ेगा, विच इज 8350। 8350 जब आप टोटल करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 1,39,000। अल्टीमेटली इसी को आप कंपेयर किए, देखो यहाँ पे आपका एचआरए जुड़ा है 6600 बट आरएफए जुड़ा है 8350, तो इसी का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो सर डेफिनेटली एचआरए लेना ज्यादा ज्यादा फायदेमंद है, बिकॉज ऑफ आरएफए और टैक्सेबल सैलरी इज इंक्रीजिंग बाय 1 लाख whatever difference. So above computation indicates that if the HSE chooses RFA, then his gross salary increases by this much, which may increase his tax liability. Hence SSE ने correct decision लिया। SSE ने बिल्कुल correct decision लिया कि उसने HRA opt किया है, उसने RFA opt नहीं किया है सर। क्लियर है सर? लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स इनकम ऑफ एस चौधरी फॉर द करंट ईयर एंड यू नीड टू कंप्यूट सैलरी इनकम। सैलरी से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सर। आइए एक बार देखते हैं। बेसिक सैलरी तो आपको पूरा प्रॉपर टी शेप करना है, जरूरी नहीं इतना वर्किंग्स डिटेल्स अमाउंट, आप प्रॉपर पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट कॉलम भी बना लेंगे तो चलेगा, उसमें आपको इतना ज्यादा वर्किंग्स दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं, इसको आप मर्ज भी कर सकते हो कॉलम को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना सर। तो सबसे पहले अपने आए बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी में अपने 15,000 इंटू 12 निकाले। 15,000 बेसिक सैलरी, 15,000 इंटू 12, तो ये हो गया आपका सैलरी, ये हो गया आपका सैलरी 15,000 इंटू 12। डीए 60% ऑफ द सैलरी, तो 1,80,000 का अगर आप 60% करते हो तो आपको मिल जाता है 1,08,000। तो आपने डीए निकाल लिया सर, या ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, आपको अलग से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1,08,000। मेडिकल 600 पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर रेलिवेंट नहीं होता मेडिकल में, याद रखना, फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो 600 इंटू 12 विच इज कमिंग टू, यहाँ पे जस्ट ब्रैकेट में शो कर देंगे 600 इंटू 12 इंटू 600 into 12, that is 7,200. Next, HRA receives 6,000 per month and she pays rent of 7,200 per month for her house in Durgapur, not Kolkata. HRA 6,000 per month है और रेंट पे करा जा रहा है, तो आपको प्रॉपर HRA का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। HRA क्या है सर? 6,000 पर मंथ यानी 72,000, इसमें से आपको लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 72,000 या 40% यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। सैलरी का 40% कैसे लेंगे? अपने बेसिक सैलरी प्लस यहाँ पर जो डीए है वो 60% ऑफ सैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने डी को फॉर्मिंग पार्ट मान सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो 1,80,000 अगर आपने डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट माना है उसके हिसाब से भी आप आंसर कर सकते हो, बट अजम्पशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा व्यू भी पॉसिबल है। तो सर यहाँ पे अपना बेसिक सैलरी कितना है? 1,80,000 और डीए कितना है? 1,08,000। तो 180 प्लस 1,08,000 ये हो गया 288, इसका 40% आता है 1,15,200, ये आपका सेकंड है। थर्ड क्या है? रेंट पेड माइनस 10%। तो रेंट आपने कितना पे किया है? रेंट आपने पे किया है सर 7,200 पर मंथ। तो 7,200 पर मंथ के हिसाब से आपको 7,200 इंटू 12
माइनस 10% ऑफ वही सेम निकालना था, दैट इज 115,200 का जो भी है ये तो 40% हो गया, जो भी सैलरी है उसका डिफरेंस आपका आ रहा है 57,600। तो सर लीस्ट 57,600 है, रिमेनिंग टैक्सेबल क्या हो जाएगा 14,400। ठीक है, मेडिकल अलाउंस हमने डिस्कस कर लिया 7,200 है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस, दिस इज आल्सो फुल्ली टैक्सेबल 1500 इंटू 12, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 18,000, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा सर। शी ओन्स अ कार विच इज बीइंग यूजिंग फॉर ऑफिशियल पर्पस, तो सर यहां पर कोई भी जो होगा टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज कार इज बीइंग यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, कार फैसिलिटी विल बी फुल्ली exempt because it is not for personal and also not for partly personal partly official. She is contributing, मतलब employee contribution है 2100 per month towards RPF, तो यहाँ पे ATC मिलेगा जो अपने को सैलरी में कंसिडर नहीं करना, बट द एम्प्लॉयर इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो यहाँ पर आपको जो होगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा 2100 पर मंथ। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 2100 इंटू 12, तो 2100 इंटू 12 कितना हो गया 25,200। नाउ यू नीड टू चेक वेदर इट इज कमिंग विद इन 12% ऑफ सैलरी। तो सैलरी क्या है सर, सैलरी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए सेम बेसिक प्लस डीए, तो 180 प्लस 1,08,000, इसका 12% अगर अपने करते तो बहुत है सर, 34,560 एग्जामेशन आ रहा है, बट यू आर रिसीविंग ओनली 25,200, सो दिस मच इज फुल्ली एग्जाम, या पूरा क्या करेंगे एग्जाम कर देंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस मत क्लेम कर लेना इसमें, यहाँ लॉस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ भी लिखा है, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है आरपीएफ में 11%, तो 9.5% एग्जाम्प्ट होता है, तो 1.5% क्या हो जाएगा टैक्सेबल, तो 2200 आपका 11% के हिसाब से आ रहा है, 9.5% के हिसाब से क्या आएगा 2200 बाई 11 इंटू 9.5 विच इज कमिंग टू 1900, तो रिमेनिंग 300 जो होगा ना वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर योर सैलरी इनकम। ठीक है, अब क्या बचा, शी पेड 1800 एज प्रोफेशनल टैक्स, तो सेक्शन 16 में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सर यहां पर हम मानेंगे यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी, ठीक है, यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, मैं आपको ये भी एक ऑल्टरनेटिव आपको बता देता हूं कि अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट किया है तो वहां पे कहां पे डिफरेंस आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, दो जगह मेन डिफरेंस आएगा। नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी अगर है तो यहां पर आप क्या करेंगे सर, सॉरी हाँ नॉट 115 बीएससी, तो आप प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन तो 16 में क्लेम करेंगे, स्टैंड डिडक्शन आपको क्लेम करना ही है, तो आपका टोटल डिडक्शन आ रहा है 51,800, ये ग्रॉस सैलरी को ऐड करेंगे तो आपका आ रहा है 327,900। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, 180 प्लस 147,600 प्लस 300 प्लस 327, सॉरी this is coming to 32900 minus 51,800, so this is coming to 327,900 minus 51,800, दिस इज कमिंग टू 276,100, तो ये हो गया आपका टैक्सेबल सैलरी, ये हो गया आपका टैक्सेबल सैलरी, क्लियर है ना, तो 276,100 हो गया, ये हो गया आपका टैक्सेबल सैलरी। सर अगर आप न्यू रेजिम में होते 115 बीएससी में होते तो यहीं पर आप क्या करते, 276,100 में सबसे पहले आप ये 51,800 ऐड कर देते, आप डिडक्शन को ऐड कर देते, सारे डिडक्शन को ऐड कर देते। ठीक है, अच्छा फिर ये जो आपने एग्जेम्पशन लिया है एचआरए का, इसको भी आप ऐड कर देते, क्योंकि एचआरए का एग्जेम्पशन न्यू रेजिम में अलाउड नहीं है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड है, इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन भी अलाउड है, स्टैंडर्ड अच्छा सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, सॉरी प्रोफेशनल टैक्स अलाउड नहीं है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, प्रोफेशनल टैक्स अलाउड नहीं है तो खाली वही ऐड की है हमने, और हमने एचआरए को ऐड किया है एग्जेम्पशन, बाद बाकी तो आपने कुछ एग्जेम्पशन एज सच लिया नहीं है। तो अगर आप न्यू रेजिम में ऑप्ट किए हो ना तो आपकी सैलरी इनकम फाइनली आएगी 276,100 प्लस 1800 प्लस 57,600 विच इज कमिंग टू 3,35,500, तो हो सकता है आपसे टैक्स लायबिलिटी पूछ ले, अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर दे दीजिएगा सर। ठीक है, so this gives me end of my discussion of your suggested answer of mock test 1, that is income from salary, house property, residential status and scope of total income। आशा करता हूँ कि आपका मॉक टेस्ट जैसा भी होगा इट इज़ एन आई ओपनर फॉर यू, और अगर आपने नहीं भी अच्छा किया कोई बात नहीं बेटा, और अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ट्रस्ट मी Rome was not built in a day, you will have to take some time out of your regular busy schedule and you need to practice, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा सर। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट एंड डिस्कस करेंगे बाद में, और मॉक टेस्ट पेपर 2 एंड ऑल सब देते रहिएगा, और सजेस्टेड आंसर भी मेरा देखते रहिएगा, पेपर पीडीएफ भी आपको शेयर किया जाएगा सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।